part in history. Not every breeze carries stories of courage, but today every ray of the sun whispers one name: India. Today every heartbeat echoes freedom, every smile wears the color of Tiranga, and every dream bows before sacrifices that made this day possible. A very proud morning to our respected principal ma'am, honorable PSC members, esteemed teachers, and my dear friends. This is not merely a celebration of a date on the calendar. It is a celebration of courage over fear, hope over despair, and unity over every difference. As we celebrate the 80th Independence Day of India, let us remember that freedom is not only inherited, it is remembered every day through our values, our actions, and our commitment to our nation. The Tiranga is ready to rise as it touches the sky. May our heartbeat is little louder. May every voice proudly say, एक तिरंगा एक पहचान हर दिल में भारत महान. With immense honor, we now request our respected principal ma'am to kindly come forward and hoist our national flag. Kiss the sky. And now the celebration continues, not only in this hall, but in every heart gathered here today. Once again, we extend a heartfelt welcome to all present here. Every Independence Day reminds us one thing, where we come from, but it also asks us a question, where do we wish to take our nation next? The answer lies in the dreams we dare to dream and the values we live to choose by. Today's program is not merely a sequence of performances. It is a heartfelt tribute to the countless men and women whose sacrifices gifted us the freedom we proudly cherish today. With a great pride and immense enthusiasm, let us begin the cultural celebration prepared by love and devotion by our talented friends, the Freedom House Suitcase. Why do you always keep this old suitcase with you? Is there gold inside? No. It holds something far more valuable than gold. Inside this are memories that built this nation. One day, when I am no longer here, keep this suitcase safe. But promise me, never open it. Why, Grandpa? Because every object inside carries pain. Every object has witnessed sacrifices. Every object reminds us of a price that no child should ever have to pay. Promise me. We promise. Years passed. The grandpa was gone, but the suitcase remained. One afternoon, the curiosity became stronger than the promise. दादाजी की यादों का संदूक पुराना है, हर कोने में जैसे फसाना है. कितनी बार कहा था उन्हें इसे कभी मत खोलना, पर आज ये दिल कर रहा है धीरे धीरे बोलना. आखिर इसमें छुपा खजाना क्या है? सोना, चांदी या कोई राज, या फिर इतिहास की कोई आवाज? चलो आज सच जान ही लेते हैं, दादाजी की विरासत को पहचान ही लेते हैं. खोलो 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 खोलो. Before we got freedom, there was a dream of one united India. मैं भारत की पहचान हूँ, हर कोने की शान हूँ, मुझको बांटना चाहा सबने.
Let's play hard. Protect my hand, cherish my people, and keep India united forever. India will never go. Britishers lost everything, so the revolutionaries were written secretly. Sometimes written in books, sometimes stitched into clothes, sometimes written by invisible ink. मैं क्रांति का पैगाम बना, वीरों का अटल प्रमाण बना, हर अक्षर में ज्वाला लेकर स्वतंत्रता का अभियान बना, अन्याय पथ का दीप बना, हर रणवीर का गीत बना, मेरे हर शब्द ने ये बोला, भारत होगा स्वतंत्र सदा, भारत होगा स्वतंत्र सदा। The meeting is tonight. Bring courage, not fear. Freedom is more closer than we think. I am only a letter, yet I can read the dreams of an entire nation. I travel silently in the darkest night, connecting brave hearts who dare to dream of freedom. Many risked their lives just to protect me because they knew I carried India's future. India will never go. This is not the weapon of courage. It is a weapon of clarity. The same lathi that struck to peaceful protesters, the same blow that tried to silence our brave hearts. I have also witnessed cries of pain, but I have also witnessed unimaginable courage. मैं अत्याचार का वार बनी, निर्दोषों की हलकार बनी, जितना बरसी वीरों पर मैं उतनी ही आजादी की धार बनी, हर चोट ने हुंकार भरी, हर पीड़ा ने ज्वाला धरी, तन घायल हुए मन अडिग रहे, यही की भारत की असली विजय गाथा बनी, यही की भारत की असली विजय गाथा बनी। The harder I was raised against them, the stronger they stood for their nation. I failed to silence their voices. Instead, I remember, no force can defeat the spirit of freedom. India will never go. What can a handful of salt do? Britishers believed nothing, but India proved everything. मैं बस एक मुट्ठी नमक खरीद पर झुका न भारत कभी, गांधी तट पे जब मैं उठा हिल गई अंग्रेजों की गद्दी, सत्य अहिंसा का साथ लिया, अन्याय को भूलकर ललकार दिया, मेरे हर कर ने ये सिखलाया, साहस ने साम्राज्य हिला दिया, साहस ने साम्राज्य हिला दिया। I am small in size, but immense insignificant. The British tried to tax me, but they could never tax the spirit of India. Gandhiji lifted me from the shore. He lifted the hopes of millions. I became a handful of India's freedom. India will never go. There was a time when Indians decided to bring freedom at home. They boycotted Britishers and wear what their own land could produce. They were not changing their clothes, they were changing the destiny of a nation. मैं खादी में अभिमान बनी, हर भारतवासी की शान बनी, विदेशी वस्त्र जब त्यागे सबने स्वदेशी की नई पहचान बनी, चरखे की गूंज में मैं पली, हर धागे में क्रांति की रही, मुझको अपना कर देश ने बोला, स्वराज की राह अब हमने चुनी, स्वराज की राह अब हमने चुनी। Every thread I carry whispers one message, believe in your own, stand by your own. I watch foreign clothes burned in the flames of Swadeshi movement. Millions of them chose self-respect over comfort. Swadeshi अपनाओ, भारत बचाओ, India will never go. स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ। The last treasure in this suitcase is not just a flag. It is a dream for which people lived, struggled and sacrificed. केसरिया बलिदान हमारा, शेर बने विश्वास हमारा, हरा रंग हरियाली लाल, चक्र गले बस चलते जाना, मैं वीर की अंतिम आस, मैं नाम का अटूट विश्वास, मुझको ऊंचा रख न सका, यही शहीदों का है आशीर्वाद, यही शहीदों का है आशीर्वाद। I am that brave heart who never returned home, and I am proudly from one nation that refused to surrender. Every time I rise, I remind the world
then India will never go. If you have seen the last object in the suitcase, it means you now understand why I asked you not open it. Freedom is not a story to be heard, it is a responsibility to be lived. The suitcase is yours now. Do not preserve it in a cupboard. Whenever you look at this flag, remember, someone gave their tomorrow so you could live your today. Never let their sacrifice to be forgotten. India will never go. India will never go. India will never go. इन निशानियों में छुपी है आजादी की कहानी, हर वस्तु में बनी है शहीदों की कुर्बानी। जिन्होंने लहू देकर वतन की शान बचाई, उनकी कुर्बानी से हमने आजादी पाई, उनकी कुर्बानी से हमने आजादी पाई। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। What a wonderful performance by our class 5 Popular children. Their outstanding performance and reminded us the spirit of our nation. And now the celebration continues. Our little stars from class 1 are all ready to light up the stage with their beautiful dance which celebrates pride and glory for the national flag. Presenting Lehra Lehra Tiranga Pyara.
inspire adorable class 1 children. Their innocence, energy and love for tricolor truly touch the heart. The celebration now takes a soulful turn. Music has the power to unite hearts, and our next performance beautifully reflects the spirit of unity and harmony. So get ready to witness the captivating Qawwali by our talented class 5 children. यह मेरा वतन हम सबका वतन मेरे दिल में कायम है चाहत वतन की निगाहों में मेरे सूरत वतन की दुनिया में मैं चाहे जहाँ रहूं नहीं खत्म होगी मोहब्बत वतन की जान इस पर निसार करता हूँ यह ऐलान बार बार करता हूँ जान इस पर निसार करता हूँ यह ऐलान बार बार करता हूँ झांक कर तो देखो मेरे दिल में झांक कर तो देखो मेरे दिल में मैं तिरंगे से प्यार करता हूँ मैं अपने तिरंगे से प्यार करता हूँ
friends. Their soulful Kawani reminded us, despite our differences, we are united by one identity, our beloved India. Sarthak, tell me, can Tiny Pet really create a big future? Yes, why not? Can Little Dreams make a great nation? Of course. Absolutely. Every big journey begins with small steps. And our next performance, and now our champions of class 2 are here to prove just with their energetic action song. नन्हे नन्हे कदम बड़े सपने.
us that every great dream begins with small steps. Fariha, can courage be measured by age? No. Can one fearless heart inspire the entire nation? Yes, of course. Our next presentation brings the life-inspiring story of India's one of the youngest revolutionaries, whose bravery continues to inspire the generation. Please welcome the talented children from class 4 as they present a skit on the life of Khudiram Bose. कभी-कभी इतिहास के पन्नों पर ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं जिन्हें पढ़ते समय आंखें नम हो जाती हैं और हृदय घर से भर उठता है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी किशोर की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 18 वर्ष थी, लेकिन साहस के पर्वत से कम नहीं था। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में उसने अपने देश की आजादी का सपना देखा। उसने ना धन चाहा, ना यश और ना लंबी उम्र। उसने चाहा भारत माता हमेशा स्वतंत्र हो। फांसी का फंदा उसके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन सका। वह हंसते हंसते बलिदान की अमर गाथा लिख गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस का प्रतीक बन गया। आज भी जब भारत में वीर सपूतों का नाम लिया जाता है तो उस अमर क्रांतिकारी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाएं और चले उस दौर में जब एक किशोर ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को यह संदेश दिया कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। प्रस्तुत है अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस, एक ऐसे गाथा जो हर भारतीय के हृदय में साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। दिन था 3 दिसंबर 1889 का, जब मेदिनीपुर जिले के हबीबपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। बालक के माता पिता लक्ष्मी प्रिया और त्रैलोक के नाथ कई संतानें हुई, लेकिन एक कन्या को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बची। अतः वे दोनों एक पंडित से सलाह करने पहुँचे। पंडित जी, हमारी पहली संतानें जन्म के 10 दिन के भीतर ही परलोक से भाग गईं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे इस बालक की रक्षा हो सके। लक्ष्मी, तुम्हें अपनी संतान को दान देना होगा। दान? हाँ, पर तुम चाहो तो अपनी बड़ी पुत्री अपूर्वा को दान दे सकती हो। इससे वह तुम्हारी किसी अपने के पास रहेगी। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। मुझे तो इसकी लंबी उम्र चाहिए बस। लक्ष्मी 2 मुट्ठी गेहूं के बदले अपने बेटे को अपूर्वा को दान कर देती है। इस रस्म को बेगुन कहा जाता है। यह सिर्फ राम नहीं है, यह हमारा कृष्ण है। इसके 2 माता पिता हैं। लक्ष्मी, इसका नाम रखो खुदीराम। यह है हमारा खुदीराम। खुदीराम मात्र 6 वर्ष के थे जब उनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए। इसी तरह उनका पालन पोषण अपूर्वा वह अमृतलाल ने किया। जब उनकी अवस्था पढ़ने लिखने की हुई तो उनकी बहन ने उन्हें एक स्थानीय स्कूल में भर्ती कराया, पर उनका तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था। दीदी, जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ, आ रही हूँ। खुदीराम, चले क्या? आगे आ क्या? अंदर आ जा। आओ प्रफुल्ल, मैंने तुम दोनों के लिए खाना रखा है, खा लेना। और सुनो, किसी से झगड़ा मत करना, खासकर कि वो ब्रिटिश लोगों से। ठीक है दीदी। प्रफुल्ल, अभी स्कूल में समय है, क्यों ना माता जी के मंदिर चले? हाँ चलो, चलते हैं। सुना है वहाँ कोई उत्सव भी है। प्रफुल्ल, चलो देखते हैं वहाँ अंग्रेज इस व्यक्ति को क्यों पीट रहा है। हाँ, देखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? उससे लड़ तो नहीं सकते, कर नहीं सकते तो फिर दिखा देते हैं। झगड़ा उससे नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बुजुर्गों और औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाता। खुदीराम, ये लो। यह मत समझना कि निशाना चूक गया। खुदीराम को पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं था। देशभक्ति उनके हृदय में सदैव चली थी। अतः वे अपने दोस्तों के साथ लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित किया करते थे। स्वतंत्रता हमारा हक है, हम मांगेंगे
और जब तक नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। मौन रहना मौत के समान है। गुलामी की जिंदगी जीने वालों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और अहमियत भी नहीं होगी। वंदे मातरम मात्र एक नारा ही नहीं है, हमारे देश का गौरव है। उन्होंने हमारी संपत्ति हड़प ली, हमारी संस्कृति को हमसे दूर कर दिया, हमारे आत्मसम्मान को भी उनको अर्पण कर दे। क्या इस अराजकता को खत्म करना है तो हमें एक होकर लड़ना होगा। तो तैयार हो तो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कमर से भागो खुदीराम। खुदीराम, प्रफुल्ल, तुम्हें बरिंदर जी ने बुलाया है, चलो। खुदीराम, प्रफुल्ल, आज सभा में तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अपनी तेज बातों से लोगों को जगाने की कोशिश करते हो। तुम्हारा गुस्सा अनमोल है। गुस्सा नहीं है बरिंदर जी, आक्रोश है। सदियों से हम जिस गुलामी में फंसते जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, इस बात की निराशा है। शाबाश खुदीराम, तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे देश को बहुत जरूरत है। तुम अपने इस भाषण से लोगों में जागरूकता फैलाओगे तो पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाओगे। इसका फल जानते हो क्या मिलेगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में मेरा सबसे पसंदीदा और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला श्लोक है ये। मैं अपने कर्म पर संपूर्ण विश्वास के साथ करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। पर जब लगे कि फल मिलने वाला है तो मना मत करना। बंगाल को इसका बंटवारा करने के लिए ब्रिटिश राज तैयार है। यहाँ न लगाने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए अनुशीलन समिति अब एक निर्णय पे आई है। पैर में छुपे कांटे को कांटे से ही निकालना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ने वाले सभी हथियार एकत्र किए जा रहे हैं। हमारे ही बीच का एक सदस्य बम बनाने का तरीका सीखने पेरे जाने वाला है। लॉर्ड कर्जन इस अदालत का मूल कारण है। उस राक्षस को हरा करना है तो ब्रह्मास्त्र चाहिए। हवा ब्रह्मास्त्र तुम ही हो। माफ कीजिए, मैं लड़ने से पीछे हटने वाला नहीं, पर मेरा मार्ग हिंसा का नहीं है। प्राण त्यागने के लिए सदैव तैयार हूँ, पर किसी को प्राण लेने के लिए नहीं। जी हाँ, खुदीराम कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहते थे। वे अपने मित्र प्रफुल्ल चाकी के साथ लोगों को अत्याचार के खिलाफ प्रेरित किया करते थे। इसलिए अनुशीलन समिति जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी, वो क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अनुशीलन का अर्थ है मनन करना व अभ्यास करना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इस संगठन का प्रेरणा स्रोत था। कुछ दिन पहले बरिंदर जी ने तुम्हें बुलाया था ना? हाँ, बुलाया था। क्या कहा उन्होंने? मैं बताता हूँ। कुछ नहीं। खुद ही मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जाने वो फिरंगी के साथ क्या करेंगे। आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। हमारे गवाह हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो खुद छुड़ाओ। मैं भले मर जाऊं, पर इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। पुलिस अधिकारियों पर हाथ उठाने की सजा क्या है जानता है? अरेस्ट हिम। खुदीराम को बंदी बना लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। बरिंदर को उसी को पता लगते ही वे उनकी जमानत करवाने आते हैं।
तो शिवा और बिल्ली एक हो गए हैं। बहुत फिर एक हो गए हैं। इस लड़की को यहाँ से उठा के बाहर भेजो। नरेंद्र जी, क्या बच्चे अपने घर पहुँच गए? हाँ, पहुँच गए। उन्होंने बच्चों को जल्दी ही सौंप दिया था ना? सौंप दिया था। क्या बात है नरेंद्र जी? बच्चे तो उन्होंने सौंप दिए गए, परंतु अत्याचार से आंदोलन पैदा होता है, दुखद घटना से क्रांति पैदा होती है। उस दिन उस गांव में जो घटना घटी, उसने खुदीराम के दिल में कभी न बुझने वाली क्रांति की आग जला दी। खुदीराम को समझ आ गया था कि उस दिन बरिंदर जी ने जो राह दिखाई थी वही सही राह है। अब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम स्वयंवर बनाने की विधि सीखने लगते हैं। बरिंदर जी के निर्देशन से वे किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाते हैं, पर किंग्सफोर्ड के घर में घुसकर उसे मारने के लिए उन्हें वहीं किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत थी। इस काम के लिए किंग्सफोर्ड के बंगले में काम करने वाले एक माली ने उनकी सहायता करी। रुको! कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? जी, हमें काम के लिए बुलाया गया है। साहब, पौधा काटने के लिए मैम साहब ने माली को लाने के लिए कहा था। सिपाही अंदर आना। निकलो यहाँ से। भूखे प्यासे इधर उधर भागते रहे। चलते चलते वे बैनी गांव के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। भूखे तो थे ही, लाई चीरा खरीदने के उद्देश्य से एक दुकान पर गए और आओ राधे श्याम, थोड़ी लाई खाई जाए। थोड़ी लाई दे। राधे श्याम, देखते इसका मुझे ऐसा क्यों है? ए बाबू, सुनो जरा, तुम्हारा नाम क्या है? हरेन सरकार। कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर सरकार। यह हुआ ऐसा क्यों बना रखा है? किसी से झगड़ा करके आया है क्या? नहीं सरकार, बस चलते चलते पैर फिसल गया और गिर गया, इसीलिए ऐसा हो गया। अच्छा, फिसल गया। कौन है तू, बता। तू वही है ना जिसने कल जज साहब के बंगले में बम फेंका था? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। यह बंदूक तेरे पास, मतलब तू भी खुदीराम है ना? कल जो तूने बम फेंका था ना, उससे किंग नहीं बल्कि दौड़ते पड़ी थी। यह सुनकर खुदीराम टूट जाते हैं। दो बच्चों की मौत से विद्रोह किया और दूसरे दो निर्दोषों की मौत से हार मान ली। ऐसे वीर को जन्म देने वाला बंगाल धन्य हो गया। खुदीराम की गिरफ्तारी का पता लगने पर बेड़ियाओं में जकड़े कोर्ट परिसर में आने वाले उस स्वतंत्र मूर्ति का वंदे मातरम के नारे के साथ हजारों लोगों ने स्वागत किया। प्रजा के दिल में जगह बनाने वाले पहले क्रांतिकारी शायद यही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
डगलस किंग फोर्ट पर। उस गुस्से की भावना से उन्हें मारने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर आया। तकरीबन 3 हफ्ते तक उनकी दिनचर्या पर नजर रखकर उन्हें मारने का सही मौका ढूंढ रहा था और मौका मिलते ही उन पर बम फेंक कर भाग गया। पर उस गाड़ी में किंग नहीं थे, बल्कि मिस्टर कैनेडी की वाइफ मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी मिस कैनेडी थे, जिनकी बम फटने की वजह से मौत हो गई। दोनों वकील अपनी अपनी दलीलें रखते रहे। एक और जहां डिफेंस लॉयर खुदीराम को हर हाल में निर्दोष साबित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील उन्हें दोषी साबित करने में लगे पड़े थे। मगर खुदीराम के एक बयान ने सब बदल कर रख दिया। जज साहब, यह सच है कि इन 2 निर्दोषों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे ही गलती के कारण 2 मासूमों की जान चली गई। The accused is found guilty and is sentenced to be hanged till death. Why are you laughing? मैंने जो गलती की है उसे आप सुधार नहीं सकते। No one can bring back a lost life. You should think this before committing a crime. मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं किंग्स फोर्ट को मार नहीं पाया। मैं आपको बम बनाना सिखा देता हूँ। क्या आप उसे मेरे लिए मार देंगे? Take him away from here. खुद एक और जहां खुदीराम गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्रफुल्ल चाकी की गोलियां खत्म हो गई। खुदीराम को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए, पर उनकी सजा बरकरार रही। उनसे अपना बयान वापस लेने को कहा गया, पर उन्हें झूठ बोलने की जगह अपना प्राण देना मंजूर था। अतः सुनवाई के दौरान खुदीराम की यातनाएं और बढ़ा दी गई थी, पर वे टस से मस न हुए। खुदीराम की बलिदान की खबरें पूरे शहर में फैल गई थी। इसी बीच खुदीराम की बहन उनसे मिलने आती हैं। खुदीराम, जा, तेरी बहन तुझसे मिलने आई है। ये सब क्या हो गया खुदी? यह दुखी होने का समय नहीं है दीदी, गर्व करने का है। मैं दुखी ना हो तो क्या करूं खुदी? तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मुझे दान दिया गया था, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। डूबते हुए सूरज को देखकर दुखी मत हो दीदी। कल सूर्योदय के बाद दुनिया को स्वतंत्र भारत की ओर ले जाने वाले उजाले को देखकर खुश हो जाओ। आज से 10 महीने और 10 दिन बाद तुम्हारा बेटा बनकर जन्म लूंगा। उस बच्चे के गले पर इस फांसी के फंदे का निशान होगा। वह तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। मेरी ख्वाहिश है स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षा है मेरा देश। यह मेरी धरती है, मेरा घर है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत माता की जय। मां, खुदीराम मर सकता है पर हारा नहीं है। वंदे मातरम। फांसी लगाओ इसे। 11 अगस्त 1908 का दिन एक 18 साल के लड़के ने एक बार में ही देश को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिशर के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। 35 करोड़ भारतीयों में जान फूंक दी।
जिस युवक की मुस्कान फांसी का फंदा भी न रोक पाया, जिसके कदम मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर बढ़ते गए, वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, भारत की जगती हुई चेतना था। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनका आदर्श इतना विशाल था कि सदियां बीत जाएंगी, तभी वे हर भारतीय के हृदय में जीवित रहेंगे। आज वो स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने सपने देखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि किसी खुदीराम ने अपना आज हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया था। शहीद कभी मरते नहीं, वे हर तिरंगे की लहर में, हर राष्ट्रीय गान की धुन में, हर बच्चे के सपने में और हर उन हृदय में जीवित रहते हैं जो माँ भारतीय से प्रेम करता है। वंदे मातरम। Through the story of Khudiram Bose, our friends reminded us that true patriotism needs no age and that courage can change the course of history. My friend, what gives us the strength to dream? Our country, What fills our hearts with pride every single day? our motherland, That's right, the soil beneath our feet and the endless sky above us remind us that beauty of our nation. so get ready to witness the classroom performance by our class की friends. यह देश की माटी, यह खुला आसमान.
देश की माटी ये खुला आसमां, ये देश की माटी ये खुला आसमां, है मेरा हिंदुस्तान मेरे सबका समान, है मेरा हिंदुस्तान मेरे सबका समान, सबका जहान है मेरा हिंदुस्तान, सबका जहान है मेरा हिंदुस्तान। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वतन की खातिर जीते हैं, वतन पहचान लुटानी है, यही हमारी विरासत है, यही हमारी निशानी है। With this wonderful performance, we come to the end of today's Independence Day cultural celebration. Every performance we witnessed today reflected the values of courage, unity, freedom, and love for our motherland. A heartfelt thank you to all the students for their incredible effort, our dedicated teachers, and the audience for their encouragement. Let us carry this spirit not just today, but in our thoughts, our actions, and everyday lives. Together, let's continue to build a stronger, kinder, and brighter India. Thank you everyone for being a wonderful audience. Wishing you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. I request the stage. कहाँ रहूं, नहीं खत्म होगी मोहब्बत वतन की, जान इस पर निसार करता हूँ, यह ऐलान बार बार करता हूँ, जान इस पर निसार करता हूँ, यह ऐलान बार बार करता हूँ। जहाँ कर तो देखो मेरे दिल में, जहाँ कर तो देखो मेरे दिल में, मैं तिरंगे से प्यार करता हूँ, मैं तिरंगे से प्यार करता हूँ, मैं